A very good morning, dear students. Today we'll be doing chapter number 4, The Land of Thick Forest. यानी ऐसी लैंड के बारे में जहाँ थिक फॉरेस्ट यानी जो ज़मीन पूरे फॉरेस्ट से जंगल से घिरी हुई है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड द प्लेस इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. कॉन्गो इज़ अ country in, do you know, Africa. In this chapter we shall learn about, हम इस chapter में क्या क्या सीखेंगे. First, location of Congo, where Congo is. Second, climate, vegetation and wildlife found in Congo. कैसा climate होता है, कैसी vegetation होती है, greenery होती है, wildlife क्या मिलती है वहाँ पे. Third, natural resources found in Congo, कौन कौन से natural resources मिलते हैं. Fourth, agriculture and industry, क्या agriculture होता है और industries setup होती है यानी. फिफ्थ, कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज. कौन कौन से कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो इस कॉन्गो में यूज़ किए जाते हैं, जो आम तौर पर आपको देखने को मिलेंगे. एंड लास्ट इज लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग देयर, अबाउट देयर लाइफ स्टाइल. Now let's begin. Look at the pictures above. You can look at the pictures here. What you can see, big forest. They are of a country named the Democratic Republic of the Congo, lying roughly in the center of Africa. ये किसके बारे में है? DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि कहाँ पर स्थित है? सेंटर ऑफ अफ्रीका. दिस कंट्री इज स्पेशल बिकॉज इट हैज़ द इक्वेटर पासिंग थ्रू इट. ये कंट्री स्पेशल क्यों है? क्योंकि इक्वेटर इस कंट्री से गुजरता है. अफ्रीका में इक्वेटर इस कंट्री से गुजरता है, इसलिए ये स्पेशल है. Now questions arises, what do the pictures tell you about the country? इन पिक्चर्स को देख के आपको क्या नज़र आ रहा है उस कंट्री के बारे में? It is thickly forested, कि बहुत घना जंगल देखने को मिल रहा है. Second, what kind of vegetation and climate do you think the country has and why? किस तरीके की हरियाली या क्लाइमेट वेदर वहाँ पर मिलता है और क्यों. थर्ड, हाउ डू यू थिंक आर द लाइफ्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री, और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे होती है, देयर लाइफ स्टाइल. विल रीड अबाउट दैट. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. हेयर यू कैन सी अ मैप ऑफ अफ्रीका. You can see not only of Africa, of world you can see, but where is Africa, where you can see like Congo, you can see here it is India. Okay, so Africa, where lies Africa? You will find Africa from where the equator passes. Here you can see this is Africa. Can you see this point where equator is passing? Can you see? So this is the country Congo from where equator passes. I have told you in this one in first chapter also that at 0 degree equator is there. Then in the north you can see Arctic Circle, Tropic of Cancer, and in south Antarctic Circle and Tropic of Capricorn is there. Now we will be reading about equatorial rainforest. Equatorial rainforest कौन से होते हैं? The Democratic Republic of the Congo, DRC, popularly known as Congo, is located in the equatorial region of the world. ये जो DRC है कॉन्गो, ये कहाँ पर स्थित है? इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहाँ पर? जो इक्वेटर जहाँ से गुजरता है वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे, इसीलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन कहा गया क्योंकि कॉन्गो से इक्वेटर गुजरता है. This means that it lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Now you can see why we are saying this, because equator lies between Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer. That is why we call it equatorial region, and the equator passes through the country. The map 4.1 shows the equatorial regions around the world. In this map you had already seen, it shows a equatorial region. These places have a hot and humid climate throughout the year. और जो ऐसी जगह होती है वहाँ हमेशा गर्म क्लाइमेट रहता है, वेदर जो है वो बहुत गर्मी रहती है पूरा साल. देयर इज़ अ डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, और क्या होता है? डेंस ग्रोथ यानी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन, ग्रीनरी, हरियाली आपको मिलेगी. नाउ कम्स लोकेशन, वेयर इट लाइज. Look at map 4.2. DRC is located roughly in the center of the continent of Africa. आप देखेंगे जो DRC है, DRC is Democratic Republic of the Congo. It is located roughly in the center of the continent of Africa. You can see here Congo is there. बीच में है ना बिल्कुल अफ्रीका की, इक्वेटर यहीं से गुजरता है.
इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका फॉलोड बाय अल्जीरिया, और ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, और सबसे पहले कौन सी है, अल्जीरिया, एंड सेकेंड इज़ कॉन्गो। द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो, और जो इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, कॉन्गो, द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो, और इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, कॉन्गो के नॉर्दर्न पार्ट में। यू कैन सी हेयर वेयर वाज अफ्रीका, अफ्रीका मैप यू कैन सी हेयर दिस। तो कॉन्गो के नॉर्दर्न पार्ट से इक्वेटर गुजर रहा है, यानी ऊपर का हिस्सा जो इक्वेटर से ऊपर होता है दैट इज़ नॉर्थ पार्ट, एंड दिस डाउन वन इज साउथ पार्ट। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 30. As you can see, DRC is surrounded by 9 countries. In this you can see DRC यानी Democratic Republic of Congo is surrounded. इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं 9 countries हैं. The Central African Republic, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola and the Republic of Congo. Okay. So this one also you will try, find out the name of the longest river in Africa. You will find it yourself and tell me, okay, in Zoom class. Next we will be doing landscape. What is landscape? The Congo River basin is located in DRC. Landscape यानी ज़मीन का तल जहाँ होता है. तो कॉन्गो रिवर जो है बेसिन, कॉन्गो रिवर बेसिन क्या होता है, व्हाट इज़ बेसिन, एन एरिया वाटर बाय रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. नाउ ऐसा ज़मीन का हिस्सा जहाँ रिवर से, नदियों से पानी दिया जाता है और उनकी ट्रिब्यूटरीज, यानी एक बड़ी नदी से जब छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, छोटी नदियों को. तो इज़ लोकेटेड DRC एंड ऑक्यूपाइज अ लार्ज एरिया. तो कॉन्गो रिवर बेसिन जो है वो DRC के पास स्थित है और एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है. दिस इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, और ये कॉन्गो रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में, एंड द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में 7वें नंबर पर है. इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, और इसे पॉपुलरली फेमसली आप क्या कहते हैं, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. देयर आर हाई माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं ईस्टर्न पार्ट में इस कंट्री के, एंड प्लेट्यूज़ इन द सदर्न, और नीचे आप साउथ में क्या देखेंगे, प्लेट्यूज़. प्लेट्यूज़ क्या होता है, जो बड़ी ऊंचाई पर होते हैं, हाई लैंड फॉर्म्स जिनका फ्लैट सरफेस होता है और हाई होते हैं, माउंटेन्स की तरह ऊंचे होते हैं लेकिन फ्लैट सरफेस होता है, और स्टीप वैलीज होती है यानी खड़ी ढलान होती है इन द सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट. सो एंड प्लेट्यूज जो हैं साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में आपको मिलेंगे. अदर देन द कॉन्गो रिवर देर आर 4 मेजर लेक्स. कॉन्गो रिवर से अलग 4 मेजर लेक्स भी हैं जो वहाँ हैं, एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू एंड तंगन्यका. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स क्लाइमेट. व्हाट इज क्लाइमेट, हाउ इज द क्लाइमेट ओवर देयर. एज द कंट्री इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इक्वेटर इस कंट्री से गुजरता है. इट रिसीव्स द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, इसलिए पूरा साल डायरेक्ट जो है सूरज की गर्मी इस पर पड़ती है, रोशनी. एज अ रिजल्ट द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, जिसका परिणाम क्या निकलता है कि मौसम यहाँ हमेशा गर्म रहता है. द नून्स आर स्पेशली वेरी हॉट, इसलिए दोपहर बहुत गर्म रहती हैं. ड्यू टू हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज़ इज़ वेरी हाई, और ये हाई टेम्परेचर यानी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो इवापोरेशन होता है, पानी का उड़ना वाटर बॉडी से, यानी कोई भी लेक है या रिवर्स है, वो बहुत ज़्यादा पानी इवापोरेट होता है, उड़ जाता है भाप बन के. एंड एवरी डे बाय आफ्टरनून इट रेन्स हैविली, और हर दोपहर आप कह सकते हैं दोपहर तक जो है इस वजह से बारिश हो जाती है. द इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट, इसलिए शाम और रातें बहुत ही ठंडी और सुहावनी होती हैं. नेक्स्ट कम्स द वेजिटेशन. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट वेजिटेशन, ग्रीनरी पार्ट. फॉर द फॉरेस्ट वी विल बी टॉकिंग. एज द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, आप जानते हैं मौसम जो है गर्म होता है. ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो क्विकली, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो जल्दी से उग जाते हैं. द फॉरेस्ट इन दिस एरिया आर वेरी डेंस एंड आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और द एवरग्रीन फॉरेस्ट है. इसीलिए जो फॉरेस्ट होते हैं इस एरिया में वो डेंस यानी घने होते हैं बहुत ज़्यादा,
और उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरा साल वो हरे भरे रहते हैं। द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट, और इस एरिया में जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे जाते हैं सूरज की रोशनी लेने के लिए। टॉप ब्रांचेज एंड लीव्स फ्रॉम अ कैनोपी एट द टॉप, और आप क्या देखेंगे, टॉप ब्रांचेज यानी ऊपर की जो ब्रांचेज होती हैं, टहनियाँ होती हैं और जो पत्ते होते हैं, फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप। नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज कैनोपी। कैनोपी इज कंटिन्यूस कवर ऑफ अ ट्री, की कंटिन्यूस जो एक पेड़ को कवर करके रखता है ऊपर से, दस प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनटू द फॉरेस्ट, की ताकि जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो एकदम से जंगल के अंदर ना घुस सके। एज अ रिजल्ट फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क एंड वेट, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो ज़मीन होती है नीचे की जंगल की, वो कैसी होती है, उसमें थोड़ा अंधेरा रहता है और थोड़ी गीली रहती है। You can see her rain forest animals and birds. So you'll be taking reading of these 3 pages, and the questions I have told you, you'll be doing like this is your homework and last 3 questions also, and you'll learn the important points like what is, you will tell me what is DRC, which 9 countries surround it, okay, which is the highest longest river in Africa, okay, all such questions. Thank you everyone and have a good day.